Good morning, students. Today I am going to continue a lesson, The Enemy, and it is your part 10 written by the Pearl S. Burke for the class 12 English. Up to now, I have told you that the main character of this chapter are Dr. Sadao, Hana, and an American prisoner. I have given you the introduction of this chapter, and I have also told you that up till now Dr. Sadao has started the operation of American prisoner, and he did not want to commit that operation, but then also he committed that operation to save the American prisoner war. Why he did not want to he did not want to operate the body of the American prisoner? Because he was the enemy, as well as all the Americans were enemy for Dr. Sadao, because Dr. Sadao was Japanese and he did not want to operate. Then also for the humanity, he operated the body of the American prisoner and he was wounded by a bullet. So up till now I have explained you that he is operating the body of the American prisoner, and Hana was helping Dr. Sadao. The door opened and there was Hana again. Where is the anesthetic? Earlier I have told you what the meaning of the anesthetic. Anesthetic means a medicine to make the body unconscious. So, where is the anesthetic? She asked in a clear voice. Hana asked Dr. Sadao that where was that anesthetic which she has to use. जिस दवाई का प्रयोग, एनेस्थेटिक का प्रयोग हाना को करना था, हाना ने क्लियर वॉइस में डॉक्टर सदाओ से पूछा कि वो कहाँ पर रखी हुई है. Sadao motioned with his chin. It is as well that you come back. He said, this fellow is beginning to stir. Now Sadao motioned with his chin. He was not able to speak because he was continuously busy in the operation of that body. तो सदाओ ऑपरेशन करने में बिजी था, इसलिए उसने अपने थोड़ी से इशारा करते हुए बता दिया कि वो वहाँ पर रखी हुई है. And he also told that this fellow is beginning to stir. Stir means to move. What the meaning of stir? Stir means to move. And that body, American body, was starting movement. She had the bottle and some cotton in her hand. She brought, what did she brought? Bottle as well as cotton in her hand. But how shall I do it? She asked. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delay for one moment the intricate detail of his work. When he breathes badly, move it away a little. तो जो हाना थी उसने भी डॉक्टरी की हुई थी, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली डॉक्टरी उसने नहीं की थी. और डॉक्टर सदाओ वाज अ प्रैक्टिकल सर्जन एज वेल एज ही वाज आल्सो अ साइंटिस्ट. तो यहाँ पर हाना डिड नॉट नो, हाना नहीं जानती थी कि हमें कैसे किस प्रकार से ये दवाइयों का प्रयोग में लेना है. तो हाना ने पूछा कि किस तरह से मुझे इस दवाई को यूज़ करना है इस अमेरिकन बॉडी के ऊपर. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड अ न्यू वर्ड केम इन फ्रंट ऑफ यू, सैचुरेट. सैचुरेट मीन्स टू वेट. Simply saturate the cotton and hold it near his nostrils. Sadao replied without delaying for one moment the intricate detail of his work. तो उसने बताया डॉक्टर सदाओ ने हाना को कि किस तरह से कॉटन को गीला करना है और फिर उसकी नाक के पास ले जाना है, और जब उसके पास नाक के पास वो दवा जाएगी तो वो अनकॉन्शियस उसकी बॉडी हो जाएगी. एंड ही वॉज बिजी इन हिज वर्क. Dr. Sadao was busy in the operation of that American prisoner. When he breathes badly, move it away a little. और जब ये व्यक्ति
तेजी से सांस ले तो उस कॉटन को उसकी नाक से दूर कर देगा। She crouched close to the sleeping face of the young American. It was a piteously thin face, she thought, and the lips were twisted. She crouched. Again a new word came in front of you. Crouch means to hid. तो उस दवा को यूज करने के लिए यहाँ पर हाना ने क्राउच किया, मतलब उसके बॉडी के पास छिप गई क्योंकि उसे बड़ा डर सा लग रहा था। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, उसका चेहरा छिपते हुए देखा, उसका दुबला पतला सा चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके लिप्स ट्विस्टेड थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट। Watching. So students, the man was suffering whether he knew it or not. अब उस अमेरिकन प्रिजनर सफ़र कर रहा था वो, लेकिन उसे पता था या नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये नहीं मालूम। Watching him, she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. उसे देखते हुए लग रहा था कि she wondered if the stories they heard sometimes of the sufferings of prisoners were true. तो उसे देखते हुए हाना को ऐसा फील हो रहा था कि जो स्टोरीज उसने प्रिजनर्स के बारे में सुनी थी, उनके सफरिंग्स के बारे में सुनी थी, तो वो आज सच सामने दिखाई दे रही। They came like flickers of rumor, told by word of mouth and always contradicted. तो इस तरह से लगता था कि जब भी वो कभी सुनती थी कि जैसे हवा के झोंके होते हैं, अफवाहों के झोंके होते हैं, वो आए और मतलब सुना अनसुना कोई व्यक्ति ऐसी बातें मान लेता है कि हाँ भाई ठीक है, ध्यान ना देना, कहने का मतलब। तो उसके लिए देवर लाइक ए फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, और ये लोगों के द्वारा सुनी जाती थी कहानी कि ऐसे ऐसे बहुत सफरिंग होती है प्रिजनर्स में, जो वॉर होता है वहाँ पर जो व्यक्ति घायल होते हैं, बहुत बुरा हाल होता है उनका। तो आज उसे खुद देखने को सामने मिल रहा। In the newspapers, the reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. In the newspapers, the report were always that. न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स ये रहती थी, जहाँ लोग जापानीज आर्मीज जाते थे उनका हर जगह स्वागत होता था, बड़ी खुशी के साथ स्वागत होता था। विद क्राइज ऑफ जॉय एट द लिबरेशन, और किस तरह से होता था, चीखते चिल्लाते हुए उनकी आज़ादी के ऊपर। बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल ताकिमा हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली। लेकिन कभी कभी उसे ये बात याद आ जाती थी कि जनरल ताकिमा जैसे भी लोग हैं संसार में, इस मेरे देश में, जो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरह से पीटता है। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मंचूरिया, जबकि नो वन मेंशन्ड इट नाउ, अब उसके बारे में इस बात की चर्चा कोई भी नहीं करता है कि एक बार उसने मंचूरिया का बैटल बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, would he not be cruel to one like this, for instance? तो इस प्रकार का यदि व्यक्ति कोई इतना ज़्यादा क्रूअल हो सकता है, जो अपनी वाइफ के ऊपर, वुमेन के ऊपर अपनी पावर को यूज़ कर रहा है, तो उसको हम पावरफुल या करेजियस नहीं कहेंगे। Would he not be cruel? इसे तो हम क्रूअल कहेंगे। To one like this, for instance, एक बार के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में जनरल ताकिमा जो है वो भी एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर सामने आ रहा है कि हम इसको एक इंसानियत नहीं कहेंगे। So students, up till now what is happening in these paragraphs, that Hana was thinking so many things in her mind, that what kind of these people are who used to have war. They used to fight with each other and they became wounded,
and what kind of life they are leading. All these things were coming in the mind of the Hana. तो यहाँ पर अब देखा जा सकता है कि जब कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में बातें ऐसे चलती रहती हैं और आती रहती हैं. इसी तरह से हना के माइंड में आ रहा. She hoped anxiously that this young man had not been tortured. It was at this moment that she observed deep red scars on his neck, just under the ear. Now she hoped anxiously that this young man had not been tortured. तो उसने उसके माइंड में एक बात आई. किसके बारे में? अमेरिकन प्रिजनर के बारे में, कि शायद इसके साथ इतना टॉर्चर नहीं हुआ होगा. जो अमेरिकन प्रिजनर है उसके साथ इतना टॉर्चर नहीं हुआ होगा. इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स. तो उसके ऊपर ध्यान देती हुई तभी हाना को उसकी गर्दन पर लाल खरोंचों के निशान नजर आए. जस्ट अंडर द ईयर. कहाँ पर नजर आए? कान के नीचे. Those scars, she murmured, lifting her eyes to सदाव. और फिर सदाव को देखते हुए कुछ बड़बड़ाती हुई यही कि देखो ये स्कार्स यानी इसके गर्दन में खरोंच. बट ही डिड नॉट आंसर. लेकिन उसने डॉक्टर सदाव ने कोई भी उत्तर नहीं दिया. एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड. उसी समय डॉक्टर सदाव को ऐसा फील हुआ कि उस इंस्ट्रूमेंट से वो ऑपरेशन कर रहा था, उसकी बॉडी में बुलेट को सर्च कर रहा था, वो किसी चीज़ से टकराई. अब वो क्या हो सकती है? डेंजरसली नियर द किडनी. और जो भी चीज़ से टकराई वो कहाँ पर थी? किडनी के पास. ऑल थॉट लेफ्ट हिम. सारे के सारे विचार डॉक्टर सदाव ने छोड़ दिए. अब क्योंकि उसको और भी बारीकी से और अच्छे से ऑपरेशन करना है. He felt only the purest pleasure. और उस जगह उसको एक खुशी भी महसूस हुई कि शायद मुझे मेरी कामयाबी मिल गई. He probed with his fingers delicately, familiar with every atom of this human body. और उसने अपने फिंगर्स के साथ बड़े नाजुक तरीके से, जो कि इसका हाथ पूरी तरह से ह्यूमन बॉडी की एक एक सेल से वाकिफ था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर सदाव डॉक्टर थे, सर्जन थे. हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी हैड सीन टू दैट नॉलेज. तो एक बार अमेरिकन एक प्रोफेसर थे जिन्होंने डॉक्टर सदाव को पढ़ाया था और जो जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे. तो उन्होंने इसको नॉलेज दी थी, एक ज्ञान दिया था कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन. सर्स कि अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है ह्यूमन बॉडी की तो तुम कभी ऑपरेशन मत करो. और ये एक तरह से अज्ञान, ह्यूमन बॉडी का अज्ञान होना किसी के ऑपरेशन करने के लिए एक पाप के बराबर है. ये बात डॉक्टर अमेरिकन प्रोफेसर ने बताई अपने स्टूडेंट्स को. He had thundered at his classes year after year. और इसी बात को उसने अपनी क्लासेस में ईयर आफ्टर ईयर ये उसके कानों में गूंजती रही. टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर. कि क्या बात उसके दिमाग में गूंजती रही कि बिना नॉलेज के, इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ बॉडी की तुम्हें अगर इनकम्प्लीट नॉलेज है एंड यू आर ऑपरेटिंग दैट बॉडी, इट इज़ नॉट लेस देन दैट मर्डर. ये मर्डर से कम नहीं है, क्योंकि एक अज्ञानी डॉक्टर के द्वारा ऐसा काम करना ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है दैट ऑपरेशन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू द स्क्रीनशॉट ऑफ these words, hard words, you can take for a while. So students, you can understand that how Dr. Sadav has operated the body of the American prisoner, and he was saving the life of the American prisoner. So in all these paragraphs, whatever the things were coming in the mind of Hana as well as Sadav while he was operating the American prisoner,
All these things are shown in these paragraphs. So students, whatever I have told you today in this video is your part 10, and it has been completed, and in the next part I will explain you that what happened after that. Till then, thank you and goodbye.